electric potential energy. Okay, so electric potential energy given by U or sometimes W. So electric potential energy का मतलब क्या है? What does it mean actually? देखो यहां पर कोई भी अगर अपन चार्ज ले लेंगे तो surrounding the charge there is a field. Okay, there is an electric field. This is an electric field surrounding a charge. Okay, now there is a test charge which is brought from infinity to this point on. ये जो चार्ज है ना कहीं infinity में था and you are bringing this charge at this place. Okay, you're bringing this charge at this place from infinity to this point. Okay, so what is the electric potential energy here? Okay, potential energy का मतलब क्या है? So here potential energy बोलो या work बोलो. Okay, so what is that you are going to do? It is integration of F dot dr. Okay, F dot dr. What is this? Force into displacement. Okay, so कोई भी एक चार्ज जो है ना कितना डिस्प्लेस करे हम लोग कहां से कहां तक. For example, there is a positive charge here. Okay, this charge has been. इस चार्ज को हम क्या है थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करें इस डायरेक्शन. We have moved certain distance in this direction, and let us take this total distance है ना. It is taken as dr. Okay, and there is a force of repulsion in the opposite direction. This is the displacement dr. Force is in this direction and displacement is in the opposite direction. Okay, force into displacement. देख लो अच्छी तरह से. And let us take first. अगर ये जो डिस्टेंस स्टार्टिंग में था ये r1 है और जो एंडिंग में है दिस इज टेकन एज r2. यहां से यहां पे डिस्प्लेस करे बॉडी. ठीक है, so let us take we are displacing from r1 to r. Okay, now here work done is nothing but देखो यहाँ पर what is an angle between displacement and force, which is nothing but 180 degrees. Okay, angle is 180 degrees. So here for dr cos 180. Okay, integration of f dr cos 180 which is nothing but ये इसको हम क्या करेंगे w which is nothing but f dr cos 180 का मतलब क्या है? What is the meaning of that? So f dr cos 180 is going to be -1 minus f into dr. Okay, minus f into dr minus f. f का मतलब क्या? ये जो चार्ज q है और ये जो चार्ज है ना q नॉट है. f is nothing but q naught by 4 pi epsilon naught into r square. This is going to be the formula for force. ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला है. So q naught by 4 pi epsilon naught into r square into dr. And limits are from r1 to r2. r1 to r2 ये लिमिट्स हो गई. So वर्क डन क्या होगा अभी? From r1 to r2. Okay, तो कांस्टेंट्स पूरे बाहर ले लो. Let us take all the constants outside. So W is equal to minus q naught by 4 pi epsilon naught बाहर ले लो. सिर्फ dr and r square है ना. r square को r पावर -2 ले लो, dr ले लो. So W is equal to okay minus q naught by 4 pi epsilon naught. Okay, तो ये क्या करेंगे आप r पावर -1 -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस मतलब -1 बाई -1 आएगा. तो वर्क डन क्या होगा? q naught by 4 pi epsilon naught और यहां पर इट इज गोइंग टू बिकम 1 by r and limits are from r1 to r2. Limits are from r1 to r2. ये भी यहां पर भी लिमिट्स लिख सकते हैं r1 to r2. So then what is going to be your final formula? ये फाइनल फॉर्मूला क्या होने वाला है? So W is equal to q naught by 4 pi epsilon naught 1 by r2 minus 1 by r1. Okay, तो ये हो गया आपका. ठीक है, तो r2 अगर इंफिनिटी ले ले तो कहीं इंफिनिटी मतलब कहीं दूर. ओके, r2 अगर इंफिनिटी है और r1 अगर यहां पर है तो व्हाट इज योर वर्क डन? सो वर्क डन इज गोइंग टू बी q naught by 4 pi epsilon naught into r2 कहां है? इंफिनिटी के पास -1 by r. ओके, इंफिनिटी से r तक लेकर आए हम लोग फॉर एग्जांपल. ओके, देन यू आर गोइंग टू गेट हाउ मच? w is equal to minus q naught by 4 pi epsilon naught. ये वाला आएगा r क्योंकि यहां पर माइनस है, यहां पर डाल दी. सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल फॉर्मूला. ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया. तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया. सो दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, देन व्हाट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल?
इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो जस्ट आई गॉट द फॉर्मूला माइनस q naught by 4 pi epsilon naught into r. Okay. For example, this is one charge, this is another charge, this is q1, this is q2, and the distance between them is taken as r. Then what is going to be the work done? Work done is minus q1 q2 by 4 pi epsilon naught into r. Okay, so this is going to be your work done formula. Got the formula now? Then what is the meaning of electric potential? Electric potential का मतलब क्या है? What is the meaning of electric potential? What is the meaning of electric potential? Okay, so electric potential energy है, whatever we got here, it is said to be electric potential energy. Then what is the meaning of electric potential? Electric potential को हम बीच में डिनोट करेंगे. Okay, so electric potential is nothing but work done on unit charge. Work done on unit charge. Okay, so what is the work done here? Work done is taken as minus q naught by 4 pi epsilon naught into r divided by q naught. Work done on unit charge. इसका मतलब q naught. So q naught gets cancelled. Electric potential formula is minus q by 4 pi epsilon naught into r. R if you take magnitude also ले सकते हैं अपन. So v is nothing but q by 4 pi epsilon naught into r भी ले सकते हैं. Because electric potential is not a vector. It is a scalar. Okay. Potential energy भी scalar. ये भी scalar है तो you can take magnitude. So electric potential का formula हमारे पास तैयार है. Okay. We have got a formula of electric potential here. Now, let me discuss one more concept here. For example, you are taking a spherical surface. ओके, एक स्फेरिकल सरफेस ले लिए, इसके ऊपर चार्ज है. सो कंडक्टिंग स्फीयर, देयर इज अ चार्ज ऑन दैट. ओके, एंड दिस इज हैविंग रेडियस r. इसको रेडियस r है समझो. ओके, सो एक कंडक्टिंग स्फीयर हम ले लिए. देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हियर? इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अच्छी तरह से देख लो आप लोग. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम कंसिडर करेंगे तो व्हाट इज दैट यू आर गोइंग टू गेट नाउ. अब हम ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट माइनस ई डॉट डी आर. ओके, ई डॉट डी आर. ई डॉट डी आर ये क्या है? ई डॉट डी आर डिस्कस किया था. देखो अभी फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से लाके यहाँ पर रख दिया हम लोग. ओके, समझो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करें, इतना सा, विच इज टेकन एज डी आर. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. So electric potential is nothing but E dot dr. Electric potential is nothing but E dr. दोनों का एंगल कितना है? 180 डिग्री. ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री से एंगल. So in this direction dr is present, in this direction E is present, and the angle between them is 180. So dv is nothing but E dr cos 180, which is nothing but minus 1. Okay, which is taken as E dr cos 180. Cos 180 minus 1 है तो फिर dv is equal to E into dr. Okay, E into dr. Okay, so then what is E here? E is nothing but minus dv by dr. You can write it. Okay, minus dv by dr. We can write it here. Okay, so electric field intensity का formula क्या है? Minus dv by dr. For example, V अगर constant है, V is nothing but 5 volts. Then what is electric field intensity? Electric field intensity is minus d by dr of 5 volts. And electric field intensity is going to be 0. Okay. When potential is constant, electric field intensity won't be there. Electric field intensity नहीं है. So what is the logic behind that? अगर potential same है तो electric field intensity 0 होगा. अब देखो यहाँ पर inside the sphere कहीं भी जाओ potential V है. Wherever you go, potential is constant. Okay? जब potential constant है, there is no electric field here. क्यों? See, electric field is always traveled from higher potential to lower potential. Okay, electric field always travels from higher potential to lower potential. Okay, when potential is same, there is no electric field at all. दो भी same potential से तो फिर electric field कहां से create होगा? Nothing will be there. Okay, and it is also proved. So here inside the sphere, electric field intensity is going to be 0. Okay, just remember one concept that electric field कहीं भी 0 होगा अगर potential same होगा. When potential is going to be same, definitely electric field intensity is going to be 0. इसका रीजन मैं बोला मैं ऑलरेडी. जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस है, जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी जो है एक चार्ज मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्जेस है. Always positive charge is taken as higher potential, negative charge is taken as lower potential. Then only this test charge will move from one place to another place. One place to another place. Potential difference is there. Higher potential is positive, lower potential is negative. Then positive charge moves from higher to lower.
एंड द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, क्यों? हायर से लोअर जा रहा है। देखो पानी, पानी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पानी जाएगा। अगर पोटेंशियल सेम है, दोनों का लेवल सेम है, तो पानी नहीं जाएगा, पानी स्टैग्नेंट वाटर बनेगा, वहीं रुकेगा। इट्स गोइंग टू बी एट द सर्टेन एट द पर्टिकुलर प्लेस ओनली, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल। सो पोटेंशियल अगर सेम है तो बहना बंद हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक ए पॉन्ड, इट इज जस्ट लाइक ए पॉन्ड। पॉन्ड में पानी बहता नहीं है, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मूवमेंट in the charges when the potential is same. Okay, when potential is same, electric field intensity is zero. That's a concept here. Now let me solve one problem based on this. Okay, a thin spherical shell is charged by some source. Okay, so this is a thin spherical shell having radius r is equal to 3 centimeters. Now just see here, potential difference between the 2 points C and P. यहां पर कितना पोटेंशियल है, यहां पर कितना पोटेंशियल है? I just told you that इनसाइड पोटेंशियल रिमेन्स सेम। कहीं भी जाओ पोटेंशियल सेम है, कहां से कहां तक? मिडिल से लेकर ये जो बाउंड्री है ना, वहां तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल रिमेन सेम। मतलब यहां पर जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल भी सेम होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी जीरो इनसाइड द स्फीयर। ओके, a spherical shell is charged. Okay, inside the sphere there is no potential, no electric field. Okay, that's the thing here now. So the angle between the electric lines of force and equipotential surface. Okay, let me discuss here now. Equipotential surface का मतलब क्या है यहाँ पर? So एक पॉजिटिव चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज हम लेंगे। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज के अतराफ जो है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम इमेजिन करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? यहां से ये डिस्टेंस सेम है r1, यहां से ये डिस्टेंस सेम है r2, यहां से ये डिस्टेंस सेम है, लेट अस टेक दिस एज r3। ओके, अब ये जो सरफेस है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल यहां कितना है, यहां भी उतना ही है, यहां पर भी उतना ही है, यहां पर भी उतना ही है। ऑन सरफेस पोटेंशियल इज रिमेनिंग सेम। तो यहां पर अगर कंसिडर करें ना, पोटेंशियल सेम होंगे इस सरफेस के ऊपर, मगर थोड़ा कम होंगे। ओके, अगर यहां पर पोटेंशियल 5 वोल्ट्स है, तो यहां पर 4 वोल्ट्स होगा, और थोड़ा दूर चले जाएगा 3 वोल्ट्स होगा, मगर 3 वोल्ट्स के पूरे सर्किल के ऊपर 3 वोल्ट्स ही होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, अब देखो, एंड व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? एंड दिस इज गोइंग टू बी electric lines of force. Equipotential surface, electric lines of force. It is making exactly 90 degrees. It is making exactly 90 degrees. हमेशा electric lines of force और equipotential surface कैसा बनाएंगे एंगल? Let me show you. This is a positive charge and this is electric lines of force. For example, अगर इसके अतराफ कोई equipotential surface अगर हम लेंगे, it is exactly making 90 degrees. Okay, with the circle. So radius is making always 90 degrees with the curve of the circle. उसी तरह जो है ना, your answer is going to be 90. Equipotential surface का मतलब ये। Okay, now let's go ahead. अभी देखो, two hollow conducting spheres of radius r1 r2, r1 is greater than r2 have equal charges. The potential would be have equal charges बोलते हैं। Two hollow conducting spheres. Okay, let us take one sphere and the other sphere, the second sphere. Let us imagine. इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? देखो आप लोग, r1 बड़ा है, तो let us take this as r1 and this is taken as r2. चार्ज तो सेम है, यहां पर जो चार्ज है सिर्फ यहां पर भी वही चार्ज, चार्ज इज गोइंग टू बी सेम इन बोथ द केसेस। ओके, चार्ज तो सेम। नाउ इक्वल चार्जेस, द पोटेंशियल इज मोर, किसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होगा? जस्ट यू शुड रिमेंबर वन थिंग, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? q by 4 pi epsilon naught into r. v is inversely proportional to r. जिसका r ज्यादा होगा, ओके, जिसका r ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, जिसका r ज्यादा होगा, बिकॉज इट इज इनवर्स रिलेशन, पोटेंशियल और रेडियस इनवर्स रिलेशन है। तो सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नीट के हैं ये सब, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो पोटेंशियल इसका ज्यादा है, इसका कम है। क्यों? इसका जो है रेडियस कम है, रेडियस अगर कम है, चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल ज्यादा है। ओके, क्यों पोटेंशियल ज्यादा है? कम सरफेसेस, कम सरफेस के ऊपर ज्यादा चार्ज, कम सरफेस के ऊपर ज्यादा चार्ज हो जाएगा, क्यों? चार्ज सेम है, और ये चार्ज यहां पर दूर दूर होगा, क्यों? सरफेस ज्यादा है। ओके, चार्जेस जो है ना, यहां पर जितना चार्ज है यहां पर उतना चार्ज है, मगर ऑक्युपाई स्पेस ज्यादा होने की वजह से एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, और यहां पर करीब करीब होगा। दैट्स द रीजन व्हाई पोटेंशियल इज गोइंग टू बी सेम, पोटेंशियल इज गोइंग टू बी ग्रेटर। ओके, तो मोर फॉर स्मॉलर स्फीयर इज द गोइंग टू बी योर आंसर, मोर फॉर स्मॉलर स्फीयर इज गोइंग टू बी योर आंसर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, अभी देखो, टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2।
two charged spherical conductors of radius r2 are connected by a wire, then the ratio of their charge densities of the spheres. ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं इसका डिस्कस करा था एक बार, फिर भी आप एक बार रिवाइज करेंगे तो ऑर्डर से मैं समझाते जा रहा हूँ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. टू चार्जेस कंडक्टर्स हैविंग रेडियस, तो सिग्मा वन क्या होगा, q1 by 4 pi epsilon naught into सॉरी r square, क्योंकि सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया. सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया. एक स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा, इज गोइंग टू बी 4 pi r square. नेक्स्ट सिग्मा 2 इज नथिंग बट q2 by 4 pi ओके r2 square. ये r1 square है तो ये r2 square, ओके, इज गोइंग टू बी r2 square. देन हियर two charged spheres having radius are connected by a wire, then the ratio of their charge densities are connected by a wire का मतलब क्या है, when they are connected by a wire, let us take one, this is one charged sphere, another charged sphere, this is having radius r1, this is having radius r2, दोनों का रेडियस अलग अलग है. अब दोनों को हम क्या करें, एक वायर से कनेक्ट करें. ठीक, वायर से अगर कनेक्ट कर दिया ना तो पोटेंशियल हमेशा सेम होगा, ये दोनों का पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा. अंडरस्टूड और नॉट, पोटेंशियल विल बी सेम हियर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर वायर से कनेक्ट करें तो पोटेंशियल सेम है. मैं ऑलरेडी बोल दिया आप लोगों को एक मरतबा, अगर किसी टैंक के अंदर बीच में एक वॉल है और यहाँ पर पानी का लेवल यहाँ तक है, यहाँ पर पानी का लेवल यहाँ तक, ओके, अगर कोई भी एक सुराख डाल दिया यहाँ पर तो पानी का बहाव यहाँ से यहाँ पर आएगा और दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा. ओके, तो पोटेंशियल रिमेन सेम व्हेन यू रिमूव, व्हेन यू गिव द कनेक्शन दे दिया तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा. तो पोटेंशियल सेम होगा, इसका मतलब क्या, v1 इज इक्वल टू v2, इसका मतलब q1 by 4 pi epsilon naught into r1 is equal to q2 by 4 pi epsilon naught into r2. ओके, 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught हो जाएगा. तो q1 by q2 is equal to क्या है, r1 by r2. ठीक है, हाँ, तो देखो यहां पर ये रेशियो आ गया. अभी क्या करेंगे, इसको बड़ा गोइंग टू डू नाउ, अब रेशियो ऑफ दीज टू बोल के पूछ रहा. सो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, ये तो 4 पाई कांस्टेंट है. सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज नथिंग बट q1 बाय q2 इनटू r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर. ठीक है, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, q1 बाय q2 के प्लेस पर डाल दो r1 बाय r2, ओके, इनटू r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर. तो r1 r2 स्क्वायर चले जाएगा, r2 r चले जाएगा. इट इज गोइंग टू बिकम r2 बाय r1. It is going to become R2 by R1. Sigma 1 by sigma 2 is nothing but R2 by R1 आ जाए. ठीक है, तो ये हो गया आपका solution, B option. Now, okay, the variation of electric potential with a radial distance r from a center of a positively charged metallic spherical shell. अभी मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था. I have explained about this concept. क्या बोल के एक्सप्लेन करा मैं अभी. फॉर एग्जाम्पल एक चार्जड स्फीयर है, there is a charged sphere having, let us imagine, positive charge. ऐसा है. so here I told you, अंदर कहीं भी जो पोटेंशियल सेम रहेगा, बीच में इधर से सेंटर पॉइंट, ओके, सेंटर से पहले यहां तक जाएंगे, फिर उसके बाद बाहर चले जाएंगे. तो सेंटर के पास कहीं भी जाओ पोटेंशियल सेम है, मिडिल में भी सेम है और सरफेस के पास भी सेम है. यहां से जितना दूर चले जाओगे, the relation is q by 4 pi epsilon naught into r. ओके, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला. तो बाहर जाएंगे तो v is inversely proportional to r, मगर अंदर तो पोटेंशियल सेम रहेगा. दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन. क्यों, अब अंदर जो है ना पोटेंशियल सेम है, जैसा बाहर चले जाएंगे रेडियस पार हो जाएगा. ये रेडियस है ना कैपिटल आर, यहां से यहां तक का रेडियस, बाहर चले जाएंगे तो फिर पोटेंशियल डिक्रीज होते चले जाएगा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, अभी मैं एक्सप्लेन करा आप लोगों को ये प्रॉब्लम, क्या बोल के एक्सप्लेन करा. इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद ए वॉल्यूम, ये जो स्पेस है इसका वॉल्यूम क्या है, 0.2 मीटर क्यूब, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट्स. इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट्स है थ्रू आउट. इसके अंदर जितना कहीं भी जो पोटेंशियल इज गोइंग टू बी सेम, और इसका वॉल्यूम क्या है, ओके, तो ये चार्जर बॉडी, चार्जर बॉडी, और इसका जो वॉल्यूम है कितना है, इसका वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है वॉल्यूम इसका. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट्स थ्रू आउट, मतलब इसका क्या है, कहीं भी जाओ 5 वोल्ट्स है अंदर. थ्रू आउट मतलब कहीं भी जाओ, थ्रू आउट द ग्लोब, ओके, इसके अंदर कहीं भी जाओ पोटेंशियल सेम होगा. देन इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, अभी मैं बोला ना, माइनस dv by dr,
When I was explaining that one, I told you it is minus dV by dr, और V सेम है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा, जीरो, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन. Okay. So let us discuss about this problem here. Let us discuss about this problem here. Two metallic spheres, one of radius r and the other of radius 2r. तो दो मेटालिक स्फीयर्स है यहाँ पर, एक का रेडियस अगर r है तो एक का रेडियस 2r है. ओके, एक का रेडियस अगर r है तो एक का रेडियस 2r है. एंड हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है. ओके, अब लेट अस टेक इसका चार्ज qp है और इसका चार्ज qq है, समझिए. ओके, दिस इज p एंड दिस इज q. ओके, सो टू मेटालिक स्फीयर्स p एंड q है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है. एक के ऊपर जो चार्ज है qp है, एक के ऊपर जो चार्ज है qq है. लेट अस इमेजिन. ओके, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड अगेन. न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? अब देखो ये दोनों को कॉन्टैक्ट में लेकर, कॉन्टैक्ट में लेकर, इसका मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा. गोइंग टू बी हैविंग सेम पोटेंशियल नाउ. पोटेंशियल अगर सेम है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो देखो पोटेंशियल अगर सेम है तो यू विल बी गेटिंग qp by 4 pi epsilon naught into r, which is equal to qq by 4 pi epsilon naught into 2r. ठीक है, क्योंकि डबल ऑफ द रेडियस है ना ये. तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट नाउ? 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught कैंसिल हो जाएगा. qp by qq is nothing but 1 by 2, 1:2 है. ओके, 1:2 रेशियो है यहाँ पर. ओके, इसका और इसका रेशियो क्या है? 1:2 रेशियो. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? q by 4 pi epsilon naught into r. अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो q और r का रिलेशन क्या होगा? q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. रेडियस अगर डबल हो रहा तो फिर चार्ज भी डबल होगा. When radius is going to double, charge is also going to be double because potential is going to be same because it is connected with a wire in the middle. ठीक है, so getting this one. So total charge क्या होगा? So qp is considered to be total charge by ये 1:2 रेशियो में बना रहे ना, ये 1:2 रेशियो इसका चार्ज है. तो इसका मतलब इसके अंदर कितना चार्ज होगा? टोटल चार्ज में से कितना चार्ज होगा यहाँ पर qp के अंदर? इट इज गोइंग टू बिकम 1/3. q इसके अंदर 1:2 रेशियो में चार्ज अगर है तो इसका अंदर क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी 1/3 ऑफ द टोटल चार्ज. ओके, हाँ, बाद में qp. ठीक है, qp डैश बोलो इसको. क्यों? कनेक्शन देके फिर अलग कर रहे. कनेक्शन देने से पहले qp था, qq था. कनेक्शन देके फिर कनेक्शन कट कर दिए तो क्या होगा? qp डैश होगा. ओके, सो 1/3 ऑफ द टोटल चार्ज. नेक्स्ट qq डैश इज 2/3 ऑफ द टोटल चार्ज. ओके, 2/3 ऑफ द टोटल चार्ज. नेट चार्ज मतलब क्या? दोनों का चार्ज अगर ऐड कर दिए तो उसको बोलते हैं नेट चार्ज. नाउ दोनों का चार्ज किस तरह करेंगे अभी? लेट अस सी हियर. फॉर एग्जांपल ये वाला चार्ज रेडियस कैपिलर है और ये 2r है. दिस इज qp, आई टोल्ड यू दिस इज qq. ठीक है, ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है बोल के बोले ना. सो सिग्मा इज इक्वल टू qp बाई 4 पाई r स्क्वायर. और ये भी क्या है? सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू qq बाई 4 पाई. रेडियस डबल है तो होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर होगा. ये 2r होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर होगा. सो व्हाट इज qp नो? qp इज नथिंग बट 4 पाई सिग्मा r स्क्वायर. नेक्स्ट qq इज नथिंग बट क्या होगा ये? 4 4 या 16 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा. ओके, ये वाला qp qq. ओके, अभी नेट चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज, यू हैव टू ऐड दीस टू. ओके, टोटल चार्ज इज नथिंग बट qq प्लस qp. सो टोटल चार्ज इज गोइंग टू बिकम कितना ही है? 20 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा. ओके, सो ये हो गया टोटल चार्ज. नेक्स्ट 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा टोटल चार्ज है ना. नाउ यू कैन अप्लाई दैट वन हियर. अब इसको यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा. देखो यहां पर अपने को qp डैश होना है 1/3 ऑफ द टोटल चार्ज. टोटल चार्ज क्या है? 20 बाई r स्क्वायर सिग्मा, ये टोटल चार्ज. और qq डैश टोटल चार्ज क्या है?
2 इंटू क्यू टी मतलब 40 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई 3। क्यों ऐसा है? वाई इट इज सो लाइक दिस? बिकॉज जस्ट आई टोल्ड यू टोटल चार्ज 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा आ गया ना। ओके, सो 20 पाई आर स्क्वायर वन थर्ड बोल के बोले, वन थर्ड क्यों ऐसा वन थर्ड? क्योंकि रेशियो 1:3 बना रहा। ओके, तो 1:2 बना रहा है, इसका मतलब ये वन थर्ड होगा, ये टू थर्ड हो गया। सो ऐसा आ गया। देन इन दोनों नए जो चार्ज, इनको कनेक्शन कट करने के बाद जो नया जो बन रहा, हैविंग रेडियस आर, रेडियस 2r, और दिस इज क्यू पी डैश एंड दिस इज क्यू क्यू डैश। ओके, तो कैसा बनेंगे अभी? इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? क्यू पी सिग्मा पी डैश सिग्मा क्यू डैश आफ्टर कनेक्शन कट होने के बाद, जिसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 बोल सकते हैं अपन। दिस इज सिग्मा 1, दिस सिग्मा 2 डैश। सो सिग्मा 1 डैश तो इज गोइंग टू बी हाउ मच? क्यू पी डैश बाई सरफेस एरिया, क्योंकि नया सरफेस एरिया सेम है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। सो क्यू पी डैश कितना हो गया? 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर चले गया, 4 1 जा 4 5 जा, तो कितना बचा? 5/3 सिग्मा, 5/3 सिग्मा, ये वाला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट उसी तरह सिग्मा 2 डैश मालूम करेंगे, विच इज नथिंग बट क्यू क्यू डैश डिवाइड बाई 4 पाई। इसका रेडियस डबल है, 4 पाई मतलब आर स्क्वायर, मतलब 4 आर स्क्वायर डबल। ओके, तो यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी अपन? सो क्यू क्यू क्या है? ये 40 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई 4 पाई 4 आर स्क्वायर। तो व्हाट आर थिंग्स गेटिंग कैंसल हियर? ओके, पाई चले गया, पाई चले गया, आर स्क्वायर चले गया, 4 1s 4 10s। ओके, तो 2 2s 2 5s, तो 3 2 जा 6, 5/6 सिग्मा बच गया, 5/6 सिग्मा। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इट वाज द टफेस्ट प्रॉब्लम आस्क्ड इन नीट ओडिशा 2019। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो यहां पर देख लो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बता रहा है यहाँ पर। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम? एक्सप्लेन, लेट अस सी। तो यहां पर द डायग्राम शोन बिलो, दिस वाज आस्क्ड इन 2017। ओके, तो यहां पर लाइंस है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस है सब, चाहे लाइंस कर्व्ड हो या डिफरेंट स्ट्रक्चर में हो या लाइन में हो, कुछ भी हो। 10 20 30 40, 10 20 30 40, 10 20 30 40। Okay, so what is the potential difference in all the three cases? In all the four cases potential difference क्या है? Okay, so यहाँ पर potential कितना है, यहाँ पर potential कितना है? It is 40 and this is 20, this is 10. So work done is nothing but V into delta. Work done is equal to Q into delta V, change in the potential. So work done is equal to Q into change in the potential क्या है? 40 minus 10. 40 minus 10, which is nothing but 30Q. Okay, work done is 30Q. कहीं भी जो 30Q है, 40 minus 10, 40 minus 10, 40 minus 10. So in all the cases, potential difference is going to be same. So work done is also 30Q is also going to be same. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वर्क डन इज सेम इन ऑल द केसेस। ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है, चाहे कर्व्ड हो, चाहे स्ट्रेट हो, या चाहे सर्कुलर हो, कुछ भी हो। सो द करेक्ट आंसर नाउ। ओके, नाउ जस्ट सी हियर, ये वाला क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। Now, two concentric metallic spheres A, B and C are having radius A, B and C. ये सबसे छोटा वाला B उससे थोड़ा बड़ा रेडियस और C उससे बड़ा, और चार्ज डेंसिटीज एक का प्लस सिग्मा, एक का मिडिल वन का बीच का जो लाइन है उसका माइनस सिग्मा, और ये वाला तो पोटेंशियल ऑफ द शेल B बोल के पूछा। सो B के ऊपर कितना पोटेंशियल होना चाहिए? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन शेल B? ओके, सो पोटेंशियल ऑन शेल B का मतलब क्या करेंगे आप लोग? व्हाट इज द आंसर हियर? तो एक तो चीज है पोटेंशियल ऑन शेल B इज शुड बी नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना B, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें भी B नेगेटिव है, इसमें भी ऊपर वाला B नेगेटिव, ठीक है। मगर पोटेंशियल एट B का मतलब ये डिस्टेंस डिनोमिनेटर में भी B आना चाहिए। तो यहाँ पर ये है और यहाँ पर B डिनोमिनेटर में भी है, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक्चुअली इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मालूम आप लोगों को? पोटेंशियल एट B इज नथिंग बट पोटेंशियल, ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा अपने को। पोटेंशियल एट A प्लस पोटेंशियल एट B प्लस पोटेंशियल एट C करके अभी क्या करना, पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है। पोटेंशियल इज नथिंग बट Q by 4 pi epsilon naught into R square. Okay, so potential is nothing but Q by 4 pi epsilon naught into R square, and okay,
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी आर स्क्वायर है, आर ही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर थोड़ा आइडिया आ जाता है आप लोग को। सिग्मा का मतलब क्या है, क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। मगर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ओके, ये वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो नाउ दिस इंप्लाइज दैट, इसमें से क्या करेंगे अपन, यू जस्ट टेक हियर सिग्मा इंटू कैपिटल, एक और ऊपर चले जाएगा, विच इज नथिंग बट क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ओके, क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पर डबल आर स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ एक ही आर, ओके, होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके सॉरी, यहाँ पर जो है सिग्मा नहीं रहेगा, जस्ट फोर बाई आर स्क्वायर, सिग्मा इज नथिंग बट फोर बाई आर स्क्वायर, ओके। देखो यहाँ पर सिग्मा इज नथिंग बट फोर बाई आर स्क्वायर, वी इज नथिंग बट क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ओके। सो क्या करेंगे अभी, दिस इंप्लाइज दैट क्यू बाई फोर बाई आर, क्यू बाई फोर बाई आर इज नथिंग बट सिग्मा इंटू कैपिटल, सिग्मा इंटू कैपिटल, ओके। तो क्यू बाई फोर बाई आर के प्लेस में क्या लिखेंगे अपन, सिग्मा इंटू कैपिटल डिवाइडेड बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं, हियर क्यू, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, क्यू इज नथिंग बट फोर पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो डायरेक्टली यहां पर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ दिस, इसमें से क्यू अगर ले लेंगे फोर पाई आर स्क्वायर सिग्मा में से, और वी इज नथिंग बट क्या होगा यहाँ पर, क्यू के प्लेस में फोर पाई आर स्क्वायर डाल देंगे इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो फोर पाई चले जाएगा, आर स्क्वायर चले जाएगा, क्या बचेगा, सिग्मा आर बचेगा, ओके। सो लाइक दिस सिग्मा। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो कैपेसिटर अगर हम ले लिए, कंसिडर करें, योर टेकन कैपेसिटर, बीच में क्या है, एयर। अगर कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल दिए, ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू इस कैपेसिटर। कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कुछ भी मीडियम है, तो यहां पर जो है ना एयर के अंदर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर मीडियम है विच इज हैविंग परमिटिविटी एप्सिलॉन, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इट इज टेकन एज डी, एरिया ऑफ द प्लेट भी सेम है, ओके। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, कैपेसिटेंस इन एयर, ये हवा के अंदर है, इसके अंदर हवा है, इसके अंदर मीडियम है, ओके। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटेंस इन दिस केस एंड व्हाट इज द कैपेसिटेंस इन दिस केस। अब देखो यहां पर, तो इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है विच इज टेकन एज सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, और इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है ए मीडियम विच इज टेकन एज एप्सिलॉन ए बाई डी, ओके। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो कैपेसिटेंस के अंदर क्या बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा इस कैपेसिटर का, या कम होगा, एयर के अंदर कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा, लेट अस सी हियर, ओके। तो इसका मीडियम ये हो, नाउ वी ऑल नो क्या है, व्हाट इज दैट, वी ऑल नो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के विच इज नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमको मालूम है ये चीज, ओके। सो डायरेक्ट एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पर क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सी एम बाई सी नॉट अगर डाल दिए तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, तो ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ओके, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो इसका मतलब क्या, विच इज नथिंग बट के हियर, ओके। सो सी इन ए मीडियम इज नथिंग बट के टाइम्स ऑफ सी इन एयर, ओके। सो ये हो गया आपका मीडियम और एयर का रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल ये जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का कांस्टेंट कितना है, के इज इक्वल टू 2 है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका, के इज इक्वल टू अगर 2 है, तो सी इन ए मीडियम इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी इन एयर, ओके। दैट मींस सी इन मीडियम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी इन एयर। इसका मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम ऐड कर देंगे कैपेसिटेंस के अंदर, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, इट्स कैपेसिटेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, ओके, कैपेसिटेंस इसकी बढ़ेगी। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल एक कैपेसिटर ले लीजिए, यू हैव टेकन वन कैपेसिटर, बीच में, तो यहां पर कोई और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, और यहां पर लेट अस इमेजिन देयर इज वन मोर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इधर,
ये कैपेसिटेंस के अंदर दो दो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस ऐड कर दिए बीच में, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है समथिंग। ओके, एंड नाउ ये d/2 और ये d/2 एक ही कैपेसिटर है, मगर आधा कैपेसिटेंस के अंदर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस K1 है, इसका अंदर K2 है। तो हाउ टू इमेजिन दिस वन, एक के अंदर एक ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखे, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 2 है, और यहाँ पर दो दो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस अलग अलग किस्म के आधा आधा कैपेसिटर के अंदर भर दिए। देन व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, इसका न्यू कैपेसिटेंस क्या है यहाँ पर, सो न्यू कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज हाउ मच, तो यहाँ पर दिस शुड बी इमेजिन लाइक दिस, इट इज इक्वल टू 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, और जिसके अंदर एक कैपेसिटर के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है और एक कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ओके, दिस इज टेकन एज K1 एंड K2, दिस इज टेकन एज d/2 एंड d/2। ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, क्या होगा यहाँ पर, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस लेट अस टेक द C1 एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट, एरिया इज सेम, मतलब दिस इज गोइंग टू बी d/2। ओके, आधा लेंगे, so this implies that C1 is equal to 2K1, इसका K1 K2, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A by B, और हम जानते हैं C नॉट का मतलब क्या, एप्सिलॉन नॉट A by B, तो इसका मतलब क्या है, C1 is equal to 2 C नॉट, क्या है वो 2K1 C नॉट, क्योंकि C नॉट is equal to एप्सिलॉन नॉट A by D। so next उसी तरह सिमिलरली we can take C2 is equal to 2K2 C नॉट, ये 2K2 C नॉट, ये 2K1 C नॉट, दोनों के दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, वन पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन में है, सो अगर सीरीज कनेक्शन है तो क्या होगा, 1 by C सीरीज इज नथिंग बट 1 by C1 प्लस 1 by C1, so C series 1 by C1 ये वाला, okay, so it's going to be how much, 2K1 C naught plus 1 by 2K2 C naught। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, you have to consider the LCM of this, so 1 by CS is equal to 2K1 K2 into C naught, तो बचा गया यहाँ पर K2 प्लस K1। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या होगा, CS इज नथिंग बट 2K1 K2 by K1 plus K2 into C naught, so therefore CS capacitance in series connection is nothing but ये सब क्या है, K in series into C naught, K in series मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट in the series connection is taken as 2K1 K2 by K1 plus K2, तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो अगर इस तरह से कनेक्शन अगर दे दिए तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा उसका, ये वाला नेट कैपेसिटेंस होगा, और ये नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन द सीरीज कनेक्शन होगा। ठीक है, ऐसा समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट, अगर एक कैपेसिटर है, इस तरह डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ऊपर वाले के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह है, अगर नीचे वाले के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह है, तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक K1 है, ये K2। ओके, यहाँ पर अभी डिस्टेंस सेम है, मगर एरिया जो है ना, ऊपर वाले का A/2, नीचे वाले का A/2। ठीक, सो जस्ट डिफरेंट कनेक्शन यहाँ पर देख लो, बाजू बाजू में कनेक्शन दिए, आधा डिवाइड करे, डिस्टेंस को डिवाइड करे, मगर यहाँ पर डिस्टेंस को डिवाइड नहीं करें हम लोग, एरिया को डिवाइड कर दिए, ऊपर नीचे कर दिए। सो दिस इज सिमिलर टू, इसको कैसा इमेजिन करिए हम लोग, हाउ आर यू गोइंग टू इमेजिन दिस वन, एक ऊपर वाला कैपेसिटर है और एक नीचे वाला कैपेसिटर है, एंड दे आर पैरेलली कनेक्टेड, इस तरह इमेजिन करना पड़ेगा हमें, यू हैव टू इमेजिन लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया एरिया A/2, ये भी हो गया एरिया A/2, और डिस्टेंस दोनों का दो सेम है। ओके, अभी इसका ऊपर वाले का कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 समझो इसको, और C1 इज इक्वल टू, ओके, कैसा करेंगे इसको अपन, एप्सिलॉन A/2 डिवाइडेड बाय D, तो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन
ए बाई टू डी। और एप्सिलॉन का मतलब क्या? एप्सिलॉन का मतलब के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू डी। ओके, तो C1 के बाई टू को अलग कर दो, के वन फर्स्ट वाला के वन एप्सिलॉन ए बाई डी मतलब C0। ओके, तो C1 आ गया हमारा, वी गॉट C1। सिमिलरली C2 क्या है? C2 विल बिकम K2/2 इंटू C0। दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, सो C पैरेलल कनेक्शन इज नथिंग बट C1 प्लस C2। यहां पर ऐड करेंगे बस, तो C1 क्या है? ये K1/2 इंटू C0 प्लस K2/2 इंटू C0। so C parallel is equal to K1 plus K2/2 into C0। इसका मतलब क्या है? C parallel is equal to K parallel into C0। so K parallel connection क्या है? पोटेंशियल, यानी डायरेक्टली कांस्टेंट पैरेलल इज नथिंग बट K1 plus K2/2। so this is going to be a parallel connection। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम बहुत सारे आएंगे, तो और थोड़े मॉडल्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो करे हुए हैं आपको भेज दूंगा। सो दिस इज आवर टुडेस क्लास, थैंक यू। कैपेसिटर्स, ठीक, तो आज जो है पहले जो है ना पोटेंशियल एक्सप्लेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर्स है चैप्टर का नाम। मगर कैपेसिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले कैपेसिटर्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बहुत कम प्रॉब्लम्स पूछता, बहुत ही कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, मगर कैपेसिटर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछा, एवरी ईयर पूछा, इसलिए सबसे पहले मैं कैपेसिटर्स को खत्म करूंगा। ठीक है, ओके, तो लेट मी डिस्कस अबाउट कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर का मतलब क्या है, डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। अभी देख लो आप लोग, एक कैपेसिटर अगर कंसिडर करें ना, तो एक कैपेसिटर के अंदर क्या रहता? तो एक कैपेसिटर के अंदर देयर आर टू प्लेट्स, यहाँ पर दो प्लेट्स है, इसमें से एक पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पर, और ये वाला नेगेटिव प्लेट। ओके, देयर इज वन पॉजिटिव प्लेट एंड वन नेगेटिव प्लेट। ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का मतलब क्या? व्हाट इज द यूज ऑफ ए कैपेसिटर? कैपेसिटर का मतलब ये है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज टेम्पररीली। ओके, तो एक ऐसा डिवाइस है विच स्टोर्स चार्ज टेम्पररीली, थोड़ी देर के लिए चार्ज स्टोर करेगा। ये परमानेंट सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, बैटरी में से थोड़ा चार्ज लेके थोड़ी देर के लिए चार्ज को स्टोर करेगा। ठीक है, इज गोइंग टू स्टोर द चार्ज टेम्पररीली। अभी देखो यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें देखना है इसके अंदर। ये एक एक प्लेट का जो एरिया है ना, ये है एरिया ऑफ ए प्लेट है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज कंसिडर्ड टू बी डी। ये डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है। ठीक है, ओके, सो कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज हैविंग वन पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट है, दोनों का बीच का डिस्टेंस डी है, और दोनों का एरिया जो है ना ये है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? कैपेसिटेंस। ओके, सो कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए कैपेसिटेंस? अभी देखो यहाँ पर, कैपेसिटेंस इज गिवन बाय लेटर सी। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटी अलग अलग है, इट्स वेरी डिफरेंट। ओके, हर कैपेसिटर का कैपेसिटी अलग अलग है। इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। इसका मतलब क्या? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो एरिया अगर ज्यादा है प्लेट्स का तो उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है, इट कैन स्टोर मोर चार्ज। अगर डिस्टेंस नजदीक है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस अगर दूर है तो कैपेसिटेंस कम होगा, इनवर्स रिलेशन है। ओके, डिस्टेंस अगर कम है तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन। और ये डायरेक्ट, प्लेट्स का एरिया अगर ज्यादा है तो कैपेसिटी ज्यादा रहती है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या? द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज सेड टू बी कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है स्टोर करने का चार्ज, उस कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ओके, तो ठीक है, ये हमको सीखना है। अब ये दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा अपने को कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाई डी। ओके, प्रोपोर्शनलिटी अगर चले जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एक कांस्टेंट आएगा। ओके, वी कॉल इट एज ए कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोलेंगे हम लोग। ओके, दिस इज डिस्टेंस डी। तो हम ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ओके, तो व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ ए एयर, क्योंकि अभी जो है ना व्हाट इज प्रेजेंट विद टू प्लेट्स, टू प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, मींस एयर इज प्रेजेंट। और एयर का परमिटिविटी क्या है? इट इज गिवन बाय द लेटर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, तो ये हो गया बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ ए कैपेसिटर।
नेक्स्ट, इसके अंदर का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द कैपेसिटर। ओके, तो इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए अपने को यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। देखो, हम गॉस लॉ के अंदर एक चीज को एक्सप्लेन करे थे। वी हैव एक्सप्लेन वन थिंग इन ए गॉस लॉ, व्हाट इज दैट। अगर कोई भी अगर एक प्लेट ले लो, कोई भी अगर एक प्लेट कंसिडर करो, ओके, और इस प्लेट के ऊपर अगर चार्ज है, देयर इज अ चार्ज ऑन द प्लेट, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस प्लेट। ओके, ये प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे। एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करे थे, याद है आप लोगों को, गॉस लॉ के अंदर अगर जब कभी भी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर को अगर कंसिडर करना है तो एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना पड़ेगा, और ये है उसका गॉसियन सरफेस, जो कि हम सिलिंड्रिकल फॉर्म में कंसिडर कर चुके हैं। ओके, तो अभी जो है एक प्लेट ले लिए, हम थोड़ा सा रिवाइज करूंगा थोड़ा ताकि आप लोगों को एक, क्योंकि हम कैपेसिटर जो ले रहे हैं ना, इसके अंदर दो प्लेट्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दीज टू प्लेट्स अगर होना है तो सबसे पहले एक प्लेट की वजह से व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जानेंगे हम। तो नाउ ये जो सरफेस था, इट इज कंसिडर्ड एज यस, सॉरी यस ले लो या ये ले लो, कंसिडर एज ये। और पीछे जो एरिया है, जो सर्कुलर एरिया है सिलेंडर का, दैट इज टेकन एज ये, और ये भी कंसिडर एज ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों एरिया ये है। और इस जगह पर जो हम एरिया कंसिडर करेंगे, उसका एरियल वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ओके, और 90 डिग्रीज, क्योंकि चार्ज यहाँ पर प्लेट पे ऐसा रहता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर रहेगा। अभी देखो, ये जो हम एरिया कंसिडर करें ऊपर की तरफ है, ओके, अगर एरिया हम जो कंसिडर करें वो अगर एरिया डी ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और उसका बीच का एंगल अगर 90 है, तो फ्लक्स क्या होगा, व्हाट इज द फ्लक्स बिकॉज ऑफ दिस। देखो, फ्लक्स डी फाई इज नथिंग बट ई डॉट डी एस हम लेते, जिसकी वजह से ई डी एस कॉस 90 विच इज इक्वल टू 0। इससे क्या समझ में आ रहा, लैटरल सरफेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 है। सो एक सिलेंडर अगर ले लिए, उसका लैटरल सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो सिर्फ ये दोनों सरफेस की वजह से है भी। ओके, तो व्हाट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस। यहां पर इस डायरेक्शन में ई है, यहां पर भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ई है, तो ए और ई के बीच का जो एंगल है, इट इज 0, हियर आल्सो इट इज 0। सो अभी फ्लक्स क्या होगा, अभी फ्लक्स इज गोइंग टू बिकम ई एस, ई डॉट एस, यहां पर ई एस कॉस 0। ओके, कॉस 0 का मतलब ये, कॉस 0 का मतलब 1, ये हो गया ई एस। यहां पर डी फाई क्यों लिया मैं, क्योंकि लैटरल सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, मगर यहां पर जो सिलेंडर का जो सरफेस है टोटल ले लिया, पूरा सर्कुलर सरफेस ले लिया, इसलिए टोटल फ्लक्स इज गिवन एज ई डॉट एस। ये दोनों का बीच का एंगल 0 है, तो ई एस कॉस 0, कॉस 0 1 होगा, तो फाई इज इक्वल टू ई एस। तो यहां पर क्या हो, यहां पर भी फाई इज इक्वल टू ई एस होगा। ओके, यहां पर भी ई एस, यहां पर भी ई एस। सो नेट फ्लक्स क्या होगा, यहां पर टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा ये वाला और ये वाला दोनों मिला के, इट इज गोइंग टू बिकम 2 ई एस। ओके, इट इज गोइंग टू बिकम 2 ई एस। और हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है गॉस लॉ क्या बता रहा है, व्हाट इज गॉस लॉ, एक्सप्लेन किया, लेट अस सी गॉस लॉ क्या एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर। तो गॉस लॉ के अंदर हम एक चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो गॉस लॉ सेज दैट नेट फ्लक्स इज गोइंग टू बी क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी क्यू नेट क्या है, अच्छा, सरफेस एरिया को हम यस भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर यस लिया था, मैं ये लिया था, तो हम इसको ये ले सकते हैं, ई ए। ओके, सरफेस एरिया को ये ले सकते हैं हम, क्योंकि कैपेसिटर्स में हम जनरली ये ही लेते हैं, एरिया ऑफ ए प्लेट को ये ही लेते हैं, यस नहीं लेते, क्योंकि समझने में इजी होता है यहाँ पर। सो टोटल चार्ज, टोटल फ्लक्स क्या आ गया हमारे को, 2 इंटू ई इंटू यस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको अगर कैपिटल क्यू लेना चाहे तो कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज टेकन एज क्यू। ठीक है, तो हम क्यू ले लिए। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ ए सिंगल प्लेट, तो एक सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है वो हम सीखेंगे अभी। दैट इज नथिंग बट ई इज इक्वल टू क्यू बाई 2। अच्छा, फिर से हम ये लेना है यहाँ पर, क्योंकि ये ही समझे थे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकॉज ऑफ टोटल प्लेट, प्लेट के इस तरफ और प्लेट के पीछे की तरफ दोनों का लेना है फ्लक्स, क्योंकि आगे की तरफ भी फ्लक्स होगा, पीछे की तरफ भी फ्लक्स होगा। एक शीट अगर ले लिए तो यहां से भी फ्लक्स आएगा, यहां से भी फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स लाइंस विच आर सेड टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं इसको। तो हमको आएगा E इज इक्वल टू क्यू बाई 2 इंटू ये। ओके, क्यू 2 इंटू ये। अब ये क्या है, ये सिंगल प्लेट की वजह से व्हाट एवर वी आर गेटिंग, दिस इज बिकॉज ऑफ अ सिंगल प्लेट।
ओके, तो और क्या है यहाँ पर, वॉट एवर वी आर कंसिडरिंग, यहाँ पर जो है ना कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स है, कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स है, जिसमें से एक पॉजिटिव रहेगा, ओके, और एक नेगेटिव रहेगा, एक नेगेटिव प्लेट रहेगा जनरली। ओके, तो यहां से कनेक्शन स्टार्ट होगा। तो अब ये प्लेट की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, विच इज कंसिडर्ड एज ई इज इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए। और एक इसके वजह से क्या है, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इट इज नथिंग बट क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए। सो अलग अलग इस शीट की वजह से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहां से आया हमको, गॉस थ्योरम से आया, गॉस लॉ के जरिए से हमको एक फॉर्मूला आया, ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला। अभी दोनों प्लेट्स की वजह से क्या होने वाला है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ द बोथ प्लेट्स इज नथिंग बट, ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, बिकॉज सिंगल प्लेट का ये, सिंगल प्लेट का ये, और दोनों की वजह से मतलब दोनों का ऐड करना पड़ेगा, टू एप्सिलॉन नॉट ए प्लस क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ है टोटल कैपेसिटर, अभी कैपेसिटर के दो प्लेट्स है ना, तो इसलिए टोटल कैपेसिटर मतलब दो प्लेट्स कंबाइन करेंगे तो फिर दोनों को ऐड करेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या होगा, ये भी दोनों को, ये आधा है, दोनों को ऐड करें ना तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ये आएगा, एप्सिलॉन नॉट ये आएगा, इसको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। तो ये अगर हम समझ में आ गया हमको, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड सम मोर बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट दिस, ओके। देखो यहाँ पर व्हाट इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस, हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले ही समझा दिया हमें, विच इज फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अलग अलग फॉर्मुलास है, और दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आर स्क्वायर है तो यहाँ पर आर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल के बराबर होना है तो पोटेंशियल को नीचे की तरफ और एक आर से अगर मल्टीप्लाई करिए, if you multiply in the denominator with one more r to electric potential, that is going to be equal to electric field intensity के बराबर होगा, okay, is going to be equal to electric field intensity के बराबर होगा। so electric field intensity का मतलब v by r, okay, तो v का मतलब क्या हो गया, e by r। मगर यहां पर कैपेसिटर के अंदर हम क्या ले रहे हैं, what are we going to consider in कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस हम d ले रहे हैं, और एक एक प्लेट का एरिया जो है ये ले रहे हैं हम लोग, तो हमको क्या करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू ई इंटू डी लेना पड़ेगा, V is equal to E into D लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस में टू प्लेट्स आगे D है, एंड ऑलरेडी वी गॉट ये वाला फॉर्मूला, E के प्लेस में हम डालेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, ओके, ये आ गया हमारा फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, ओके। तो हम ऑलरेडी फर्स्ट जो डिराइव करे थे, वी हैव डिराइव्ड वन फॉर्मूला इन द स्टार्टिंग, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू CV, ओके, स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला हम डिराइव करे थे, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, Q is equal to CV। ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q is equal to CV, देखो एक कैपेसिटर के अंदर जो भी चार्ज फॉर्म हो रहा, जो भी चार्ज डिपॉजिट हो रहा, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल वी आर गोइंग टू कनेक्ट, ओके। अब एक कैपेसिटर है, ये तो कैपेसिटर के प्लेट्स है, अगर कैपेसिटर का सिंबल अगर हम कंसिडर करें तो सिंबल इस तरह होता, कैपेसिटर का सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ ए कैपेसिटर, जिसके अंदर बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और ये कैपेसिटर का पॉजिटिव और ये कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। देखो अभी जो चार्ज है ना कैपेसिटर के ऊपर, और यहाँ जो पोटेंशियल हम कनेक्ट करें बैटरी का, जितना भी पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना चार्ज ज्यादा डिपॉजिट होगा, दैट्स व्हाई वी कंसीडर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब कैपेसिटर का जो चार्ज है इट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल मतलब बैटरी के अंदर जितना पोटेंशियल ज्यादा होगा कैपेसिटर के अंदर उतना चार्ज ज्यादा होगा। देयरफॉर अगर इसको हम ये प्रोपोर्शनलिटी निकाल देंगे तो फिर कैपेसिटर एक कांस्टेंट आएगा जो कि C है, C is nothing but capacitance of a capacitor, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ओके। तो अभी देखो हम लोग ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और एक इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू CV, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पर सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1, इसको ले आके 1 में सब्सटीट्यूट कर दो, V इज इक्वल टू Q के प्लेस में डाल दो CV एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, ओके। तो V कैंसिल कर दो, V कैंसिल कर दो, तो अभी क्या बचेगा, C, ओके। दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ओके, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ओके। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ओके। तो ये है हमारा फॉर्मूला, ऑलरेडी हम इसको पहले एक्सप्लेन कर चुके थे, ओके, जस्ट हम एक्सप्लेन कर दिए। Capacitance of a capacitor is directly proportional to area of the plate and inversely proportional to
डिस्टेंस बिटवीन द बोल के ऑलरेडी हम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बोल के बोल दिए थे। अब यहाँ पर क्या करें, वी हैव जस्ट प्रूव्ड, का डेरिवेशन भी दे दिया, उसका प्रूफ भी दे दी। ठीक है, ओके। तो हमारा फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस से। नेक्स्ट, अभी देखो यहां पर एक को हम सीरीज कनेक्शन देंगे और एक वाला पैरेलल कनेक्शन देंगे। तो क्या होगा देखेंगे अभी, व्हाट हैपेंस व्हेन यू कनेक्ट। तो कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है तो क्या होगा, विच इज कनेक्टेड टू द सिंगल बैटरी, और यहां पर दो कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड है एंड इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना है, समझो इसका कैपेसिटेंस C1 है। ओके, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। ओके, तो दिस इज द पोटेंशियल, ये वो पोटेंशियल है। दिस पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू दीज टू कैपेसिटर्स। ओके, तो यहां पर क्या है, पोटेंशियल इज गोइंग टू बी सेम। ओके, तो कैसा है यहां पर, ये यहां पर जितना पोटेंशियल होगा यहां पर भी वही उतना ही पोटेंशियल होगा। यहां पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल इज गोइंग टू रिमेन सेम, यहां पर कितना है वहां पर भी उतना ही, बिकॉज दे आर सेपरेटली कनेक्टेड टू द बैटरी। तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, मगर यहां पर जो करंट पास होगा ना, तो करंट यहां पर डिवाइड होगा I1, यहां पर डिवाइड होगा I2। तो करंट अगर डिवाइड हो गया तो चार्ज भी डिवाइड होगा। यहां पर जो चार्ज है, लेट अस इमेजिन दिस इज Q1, और जो सेकंड कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो Q2 है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देख लो, यहां पर जो पोटेंशियल कनेक्टेड है V है, और इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। ये पोटेंशियल जो है ना, यहां पर डिवाइड होगा V1। इन ए सीरीज कनेक्शन पोटेंशियल इज गोइंग गेट डिवाइडेड। जो भी पोटेंशियल है इसमें थोड़ा और इसमें थोड़ा, इसमें थोड़ा और इसमें थोड़ा डिवाइड होगा, इज गोइंग टू डिवाइड हियर। पोटेंशियल इज गेटिंग डिवाइडेड इन द टू कैपेसिटर्स, यहां पर थोड़ा, यहां पर थोड़ा। तो यहां पर अभी क्या है देख लो, यहां पर सीरीज कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है, और यहां पर जो करंट पास होगा सेम करंट पास होगा दोनों कैपेसिटर से। तो इसलिए क्या है, यहां पर भी चार्ज सेम है और यहां पर भी चार्ज सेम है। ठीक है, दोनों के पास कैपेसिटर्स के पास चार्ज सेम है, चार्ज इज गोइंग टू गेट सेम। ये C1, ये C2, और ये C1, ये C2, यहां पर पोटेंशियल सेम है, यहां पर चार्ज सेम। तो यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल इज गेटिंग डिवाइडेड है ना, तो इसलिए हम डालेंगे V इन सीरीज कनेक्शन इज गोइंग टू बी V1 प्लस V2, और यहां पर जो डिवाइड होगा वो चार्ज डिवाइड होगा। यहां पर जो डिवाइड होगा चार्ज डिवाइड होगा, इसलिए पैरेलल कनेक्शन में क्या डालेंगे हम लोग, पैरेलल कनेक्शन में डालेंगे Q1 प्लस Q2। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देख लो, Q इज इक्वल टू CV, और यहां पर क्या है, V इज इक्वल टू Q बाई C। V इज इक्वल टू Q बाई C। तो यहां पर Q इज इक्वल टू CV, Q पैरेलल इज इक्वल टू C पैरेलल एंड V। ओके, तो V कहीं भी हो, V सेम है, यहां पर भी टोटल पोटेंशियल भी V है, यहां पर दोनों के पास V है, सो V वैसे डाल देंगे। और Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V। नेक्स्ट, V सीरीज मतलब Q बाई C ना, V का मतलब यहां पर डालेंगे Q, चार्ज सेम है तो Q बाई C इन सीरीज कनेक्शन। तो चार्ज सेम है Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। ठीक है, तो पोटेंशियल हम कैंसिल कर देंगे, यहां पर चार्ज खत्म कर देंगे, पोटेंशियल विल रिमूव एंड चार्ज विल रिमूव। क्या आएगा देखेंगे यहां पर, व्हाट इज गेटिंग नाउ। तो ये सारी चीजें चले जाएंगे, पोटेंशियल चले जाएगा यहां पर, गेटिंग कैंसिल। तो यहां पर C पैरेलल इज गोइंग टू बिकम C1 प्लस C2, और यहां पर चार्ज खत्म हो जाएगा। 1 बाई C सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, इसको और एक फॉर्मूला डाल सकते हैं। C1 C2 को अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो C सीरीज विल बिकम C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ऐसा भी डाल सकते हैं इसको। वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। सो C सीरीज का फॉर्मूला C1 C2 बाई C1 प्लस C2, C पैरेलल का फॉर्मूला C1 प्लस C2। ये हो गया सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का एक छोटा सा एग्जाम्पल। ओके, अब देखेंगे अपन। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन।
ओके, अब यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे. लेट मी सॉल्व सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हियर सो दैट यू विल गेट सर्टेन आइडिया. थोड़ा कैपेसिटर सीरीज एंड पैरेलल के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आप लोगों को. गेट सर्टेन आइडिया विच इज पैरेलल, विच इज सीरीज कनेक्शन. यहाँ पर देख लो अच्छी तरह से. ओके, ओके, तो इस तरह के कनेक्शन के अंदर व्हाट इज द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी बोल के पूछ रहा. तो किस तरह मालूम करेंगे ए एंड बी के बीच का जो कैपेसिटेंस है. अभी देखो ये तो जो दोनों सीरीज कनेक्शन में, ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है. तो जब सीरीज कनेक्शन में है तो क्या होता है 6 × 6/6 + 6, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, व्हेन सी इज इन सीरीज इज C1 + C2 बोल के बोले हम लोग. ओके, तो इस कैपेसिटर्स के जो कनेक्शन को है ना थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो जाए और कौन सा सीरीज कनेक्शन में है कौन सा पैरेलल कनेक्शन में है क्लियरली थोड़ा सा आइडिया आ जाए. अभी देख लो यहाँ पर 6 और ये वाला 6, ये दोनों नीचे की तरफ 3 माइक्रोफैराड से पैरेलली कनेक्टेड है. फिर उसके बाद ये वाला 6 माइक्रोफैराड नीचे इस तरह कनेक्शन दे दिए. अब देखो ये वाले सर्किट को हम मॉडिफाई करके ऐसा बना दिए. नो इट इज वेरी इजी. अब ये 6 और 6 यहाँ पर है, तो 6 और 6 है ये, और नीचे क्या है 3. अब ये पूरा का पूरा कनेक्शन इसको सीरीज कनेक्शन में है, तो इज गोइंग टू बी 6 माइक्रोफैराड्स माइक्रोफैराड्स और ये माइक्रोफैराड्स, ये भी 6 माइक्रोफैराड्स. ओके, ये सारे के सारे चीजें नीचे की तरफ 2 माइक्रोफैराड्स इससे पैरेलली कनेक्टेड, इससे पैरेलली कनेक्टेड है. ठीक है, तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये दोनों जो है ना सीरीज कनेक्शन में है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया 6 × 6/6 + 6 इज नथिंग बट 3 माइक्रोफैराड्स हो गए. ओके, तो ये पूरे का कॉम्बिनेशन क्या हो गया 3. ओके, सो इट्स गोइंग टू बी 3. ये पूरे का कॉम्बिनेशन क्या हो गया 3 माइक्रोफैराड्स. और ये 3 क्या है, इट इज गोइंग टू बी इन पैरेलल कनेक्शन. दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे अभी. तो दोनों को अगर ऐड कर दिए तो क्या हो रहा है, लेट अस सी. ये पूरे का क्या हो रहा है यहाँ पर, हाउ मच इट इज गोइंग टू बिकम, ये 3 और ये 3 इज गोइंग टू बी 3 + 3 6 माइक्रोफैराड्स. ओके, तो ये पूरे का पूरा सर्किट 6 माइक्रोफैराड्स है और ये 6 माइक्रोफैराड्स. इसको थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पर सिंपल वे में डाल देंगे. अब सिर्फ इतना सा बच गया, ये पूरे का पूरा 6, ये बाजू का 6 और नीचे का 2 माइक्रोफैराड्स. ओके, अब ये दिस ए एंड दिस इज बी. ओके, सो ये पूरे ये और बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो यहाँ पर भी ये भी ले लो. 6 एंड 6 जो है ना सीरीज कनेक्शन में है, तो अभी इसको फिर C1 C2 C1 + C2 डालेंगे तो क्या बनेगा, इस कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बिकम हाउ मच, ये पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बिकम 3 माइक्रोफैराड्स. ठीक है, फिर क्या है 3 जो है ना 2 माइक्रोफैराड से पैरेलली कनेक्टेड है. सो सी नेट मतलब सी अक्रॉस ये भी, अब ये 3 और +2 मतलब 5 माइक्रोफैराड्स हो गए. तो इस तरह के सर्किट को हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सिंपल वे में मैनेज करेंगे. इसको इस तरह डालेंगे और हम इसको C अक्रॉस ये भी इज गोइंग टू बी 5 माइक्रोफैराड्स बोल के हम डाल सकते. ठीक है, ये वाला सर्किट थोड़ा सा एग्जांपल है. नेक्स्ट और एक सर्किट देखो अच्छी तरह से. तो ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. देखने में परेशान करता हूँ मगर है कुछ भी इसमें. नो लेट अस सी. अभी यहाँ पर देख लो 9 9 और 9 सीरीज में, ये तीनों के तीनों सीरीज में. ओके, तो जब सेम कैपेसिटर्स सीरीज में है तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला बोल देता हूं, C इन सीरीज इज गोइंग टू बी C/N. ओके, कितने हैं सीरीज में, अगर n कैपेसिटर्स सीरीज में है, n कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है तो उसका नेट कैपेसिटेंस क्या होगा C/N. मतलब अभी देखो यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स सीरीज कनेक्शन में अगर है तो 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज कनेक्शन इफ इट इज देयर, देन एक कैपेसिटर को ले लो और उसको कितने सीरीज में है 3 है सीरीज कनेक्शन में, तो C/9/3 डाल दो, इज गोइंग टू बी 3 माइक्रोफैराड्स. इसका मतलब क्या है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के क्या हो गया 3 माइक्रोफैराड्स. ओके, ये 3 माइक्रोफैराड्स है और ये 6 माइक्रोफैराड्स है. 3 और ये 6 तीनों 3 को और 6 को ऐड करेंगे तो बनेगा क्या, ये 9 बनेगा. इसका मतलब अभी क्या है, ये पूरा का पूरा 9 माइक्रोफैराड्स हो गया. क्यों, ये तीनों का हो गया 3 और 3 पैरेलली कनेक्टेड है तो 3 + 6 इज 9. फिर ये 9, ये पूरा 9 और ये 9, ये तीनों के तीनों 9 है. फिर 9 मतलब फिर से 3 माइक्रोफैराड्स होगा, 3 + 6 कितना होगा 9 होगा. फिर 9 9 9 सीरीज में है
तो सी अक्रॉस ये भी इज, ये भी 9, ये पूरे का पूरा राइट साइड का 9 और ये भी 9, सो 9/3 विच इज नथिंग बट 3 माइक्रोफैराड्स। ओके, तो इस तरह से इसका टोटल आंसर हमारा आ गया, इज गोइंग टू बी 3 माइक्रोफैराड्स। ओके, इस तरह सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को। अब यहाँ पर देख लो, सी और सी और सी अगर इस तरह से कनेक्शन है तो फिर क्या करेंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या करेंगे अभी। सो ये वाला जो है ना पैरेलल कनेक्शन है, अच्छी तरह से याद रखो, ये वाला जो है पैरेलल कनेक्शन में है। ओके, इज गोइंग टू बी इन पैरेलल कनेक्शन। किस तरह बोल सकते हैं पैरेलल कनेक्शन में है बोल के, ये कैपेसिटर को निकाल दो, इसको क्या करो, ये जो है ना इसको निकाल के यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, इसको निकाल के यहाँ पर डाल सकते हैं, ये पूरा स्पेस में कहीं भी इसको यहाँ से निकालकर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से निकालकर यहाँ एडजस्ट कर दो, फिर इसको यहाँ से निकालकर यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर ये वाला नहीं है, ये वाले नहीं है, अब यहाँ पर इसको निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या है ये, दिस इज ऑल्सो सी, दिस इज ऑल्सो सी, दिस इज ऑल्सो सी, तीनों के तीनों पैरेलल कनेक्शन में, तीनों के तीनों पैरेलल कनेक्शन में है। सो सी अक्रॉस ये भी पैरेलल है, मतलब क्या करेंगे, जस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या है, C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन। कितने पैरेलल में है सबके सब ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3C। इस तरह सॉल्व करेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट, अब देखो ये थोड़ा कंफ्यूजन दिखता मगर है कुछ भी नहीं इसके अंदर, नथिंग इज इन दैट। ओके, अब देखो इसको, सबसे पहले क्या है, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में, ये दोनों के दोनों पैरेलल कनेक्शन में है क्योंकि एक लाइन डाल दी है। सो ये दोनों का सॉल्यूशन क्या है, 2C। ओके, तो अभी देखो ये यहाँ पर C और ये दोनों का दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, तो इट इज गोइंग टू बी कितना, 2C। ओके, ये दोनों के दोनों पैरेलल कनेक्शन में B। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को क्लब कर दिया। अब देखो ये दोनों इससे सीरीज कनेक्शन में है, ये दोनों इससे सीरीज कनेक्शन में है। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अभी देखो सीरीज कनेक्शन में है ये ए और बी। सो सीरीज कनेक्शन में है तो क्या फॉर्मूला है, C1 + C2। इसका मतलब C × 2C / C + 2C विच इज नथिंग बट 2C² / 3C। तो C कैंसिल हो जाएगा, तो ये C अक्रॉस ये भी इज गोइंग टू बी 2C/3 आपका आंसर है। 2C/3। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सारे के सारे कैपेसिटर C है, सारे के सारे कैपेसिटर्स C है, और ये वाला A और ये वाला B है। ठीक है, तो इस तरह के कैपेसिटर को एक चीज याद रखना ये है, अगर आप लोगों को अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ तो भी थोड़ा आइडिया है, तो हियर दिस इज जस्ट लाइक ए कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिज, कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। और यहाँ पर जो भी वर्टिकल केसेस में आएंगे, जो भी वर्टिकल कैपेसिटर्स आएंगे, और ये जो है ना इस तरह का सर्क्यूट अगर है तो हम क्या करेंगे आपको मालूम है, ये जो है ना इसको निकाल देंगे। क्यों, नो करंट पासेस वर्टिकली, इस तरह यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगा, तो टोटल चार्ज हियर ऑन दिस विल बी 0। तो सिर्फ 3 कैपेसिटर्स और 3 कैपेसिटर्स कंसीडर करेंगे, ये बीच में वर्टिकल कंसीडर नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक ए व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज जस्ट लाइक ए व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है, तो ये C और C और C। सो दिस इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसके अंदर यहां से मिडिल वाला कैपेसिटर को हम निकाल देंगे। क्यों, नो करंट पासेस थ्रू द रेसिस्टर व्हेन दीस 4 आर बैलेंस्ड, ये चारों के चारों अगर बैलेंस है तो यहां से कोई करंट पास नहीं होगा, इस कैपेसिटर को हम निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर व्हाट विल यू डू हियर, ये दोनों को मिलाकर हम, ये सीरीज कनेक्शन में है तो C/2 डालेंगे। ओके, क्यों, C1 C2 / C1 + C2 मतलब C/2। ये भी क्या है, दोनों सीरीज कनेक्शन में, ये भी C/2, ये C/2 और ये C/2 दोनों को ऐड करेंगे तो अभी क्या आएगा अपना सॉल्यूशन, C अक्रॉस ये भी इज इक्वल टू C/2 + C/2 विच इज नथिंग बट C। अच्छी तरह से याद रख लो, एक शॉर्टकट है यहाँ पर, वो शॉर्टकट ये है कि जब कभी भी कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर सारे के सारे कैपेसिटर्स अगर सेम है तो कोई एक कैपेसिटर उसका आंसर होगा। किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर
सारे के सारे कैपेसिटर्स अगर सेम है तो कोई एक कैपेसिटर आके उसका आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर सी हो गया। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। अब ऐसे जो विट्स ब्रिजेस है कितने हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विट्स ब्रिजेस आते हैं। तो जो बेसिक विट्स ब्रिज है वो तो मैं डाल के बता दिया आप लोगों को। अब कितने तरह के विट्स ब्रिजेस हैं वी शुड डिस्कस। ये भी एक विट्स ब्रिज है, जैसा ये विट्स ब्रिज था ये भी एक विट्स ब्रिज है। यहाँ पर भी सी अक्रॉस ए बी अगर कंसिडर करें तो ऑल कैपेसिटर्स आर सेम, मतलब कोई भी एक कैपेसिटर इसका आंसर है। ये भी विट्स ब्रिज का एक एग्जाम्पल है। अच्छा, और एक विट्स ब्रिज के और क्या एग्जाम्पल्स है मैं आपको बताता हूँ विट्स ब्रिज के। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ पर एक कैपेसिटर। ओके, तो ये सी 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 और सी, ये पूरे के पूरे कैपेसिटर सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी अक्रॉस ए बी इज नथिंग बट, ये भी बिट्स ऑन बिट्स का एक छोटा सा एग्जांपल है। तो कोई भी एक कैपेसिटर इसका आंसर हो जाएगा। और एक क्या है एग्जांपल बिट्स ऑन बिट्स का। तो ये भी एक बिट्स ऑन बिट्स है, ये किस तरह का बिट्स ऑन बिट्स है। अब देखो यहाँ पर टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है। ये टर्मिनल को जो है ना ये फोल्डेड फॉर्म में है, इसको अगर ओपन करेंगे ना तो ये भी बिट्स ऑन बिट बन जाएगा। इसको अगर ओपन करें तो ये भी बिट्स ऑन बिट्स बनेगा, सारे के सारे कैपेसिटर सेम है। तो सी अक्रॉस ये भी क्या होगा, कोई एक कैपेसिटर इसका आंसर, ये भी बिट्स ऑन बिट्स का एग्जांपल। ओके, तो और क्या क्या एग्जांपल्स है बिट्स ऑन बिट्स के। तो ये सारे के सारे कैपेसिटर सी है। अब देखो यहाँ पर ये बिट्स, ये किस तरह का बिट्स ऑन बिट्स है, आप अच्छी तरह से देखो। ये जो ऊपर का पार्ट है ना ये एक बिट्स ऑन बिट्स है, नीचे का पार्ट अलग। तो ऊपर का पार्ट जो है ना बिट्स ऑन बिट्स है, चाहे तो देख लो आप ऐसा और ऐसा, चार कैपेसिटर है, बीच में कैपेसिटर है। तो ये ऊपर का जो बिट्स ऑन बिट्स है उसकी कैपेसिटेंस क्या है, सी है। तो पूरे का पूरा ऊपर पार्ट वाला बिट्स ऑन बिट्स को हम सी बोल के डाल देंगे। नीचे और एक कैपेसिटर है जो कि इससे पैरेलल कनेक्शन है, तो ये भी सी है। अब ये और ये बी है, सो सी अक्रॉस ये भी क्या होगा, ये सी और ये सी। यहाँ पर बिट्स ऑन बिट्स ऊपर वाला पार्ट, नीचे और एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड है। तो सी अक्रॉस ये भी क्या होगा, इसको इसको ऐड करेंगे तो इट इज गोइंग टू बिकम 2C। ओके, तो ये एक बिट्स ऑन बिट्स का एग्जांपल है। और एक क्या है, ये कैपेसिटेंस सी 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 और सी और ये सी, ये हो गया ये और ये हो गया बी। तो ये भी एक बिट्स ऑन बिट्स है। ये किस तरह का बिट्स ऑन बिट्स है, अच्छी तरह से देख लो आप लोग। अगर ये बी टर्मिनल को यहां से हटा के यहां पर डाल देंगे बी, और ये टर्मिनल को यहां से हटाकर यहां पर डाल देंगे, तो ये भी एक बिट्स ऑन बिट्स हुआ। मिडिल का कैपेसिटर, ये दोनों नीचे ऊपर, ये दोनों नीचे ऊपर कैपेसिटर। तो यहां पर भी सी अक्रॉस ये भी क्या हो गया, सी। ये भी एक एग्जांपल है बिट्स ऑन बिट्स का। नेक्स्ट और एक क्या है,
ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पर अच्छी तरह से देख लो, ये एक कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, मगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट को हम समझेंगे, एक कार्नर को। तो कार्नर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सी और ये भी सी, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, C/2 होगा ये, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में है तो C/2। ये C/2 और ये सी दोनों पैरेलल में है, तो C/2 प्लस सी पैरेलल मतलब ऐड करना। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 3C/2। तो ये पूरा एड्ज का जो रिजल्ट है वो क्या है, 3C/2 है। इसका मतलब ये भी 3C/2, ये भी 3C/2, ये भी 3C/2। तो यहाँ पर सी अक्रॉस ए बी को करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है मालूम? अब इसको हम इमेजिन करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। ओके, एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हम इमेजिन कर सकते हैं, बीच में से निकाल देंगे इसको बीच का। और ये वाला क्या है, 3C/2, ये वाला 3C/2, ये वाला 3C/2 और ये वाला 3C/2। ठीक है। ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, बीच का पार्ट निकाल दिए, एक एक को इस तरह डाल दिए। तो यहाँ पर बात शॉर्टकट की क्या है मालूम, यहाँ पर अगर ये बी है, तो कोई एक कैपेसिटर इसका आंसर है, 3C/2 इसका आंसर है। कोई एक एड्ज अगर मालूम करे ना, वही आंसर है इसका। तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका और एक एग्जाम्पल दे देंगे हम, वन मोर व्हीटस्टोन ब्रिज दे देंगे। अब ये सारे के सारे सी है, पूरे के पूरे कैपेसिटर सी है। ओके, तो अभी ये भी एक डबल व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऊपर वाला पार्ट एक व्हीटस्टोन ब्रिज, नीचे वाला पार्ट एक व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो अच्छी तरह से आप अगर देख लो ना, तो ये वाला एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये वाला एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ऊपर वाले व्हीटस्टोन ब्रिज में सारे के सारे कैपेसिटर सेम है। इसका मतलब इन सबका जो है नेट कैपेसिटेंस सी है, और ये भी सारे के सारे कैपेसिटर सेम है, इसका नेट कैपेसिटेंस भी सी है। ओके, इससे क्या समझ में आप लोगों को, ये ऊपर वाला पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज जाके एक कैपेसिटर की तरह इमेजिन करो, नीचे वाले को भी एक कैपेसिटर की तरह इमेजिन करो। इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, ये भी सी और ये भी सी, तो सी अक्रॉस ये भी क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, इट्स गोइंग टू बी 2C आपका आंसर। ओके, तो ये हो गया आज का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कल से थोड़ा जल्दी 9 तक आ जाए तो अब अपन जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके।